Hello everyone, welcome to Equipoise classes. I am Surbi and till now we have covered national income accounting basics, that is what is it and why is it important. Also how to calculate it, we have already covered the product method and today we will be doing expenditure method. Also I have made videos on national income and related aggregates where you understand the basic difference and the basic terms, depreciation, net factor income from abroad and etc etc. So you can always go in the description box, find the link and watch the video and then come back, because I will also highlight the important videos that you should definitely watch before watching this video. So if you are new here, then I would recommend go in the description box. There are two videos, that is difference between gross domestic product and gross national product. Also the second video, national income and related aggregates. These two videos are very important to understand the concepts which are given in this video. Okay, so let's just get into the video and today we will be, so as you can see how to calculate national income, and we have already covered the product method, so you can find the tick mark here that okay, it's done. Now we will cover expenditure method. Income method you will definitely find in another video, most probably next video. So expenditure method, we looked in the product method that the firms which are making the output, and when we are aggregating the output, so that is how we are calculating the value added. That is why it is also known as the value added method. Similarly, if we do not want to look at the firms and their value added, so then we can look at one firm, and first of all we will start with one firm in the expenditure method, then we will aggregate the expenditure method, the entire firms, like all the firms, expenditure on all the firms, and then we will get to these formulas also. And don't find it very difficult, this is very easy, you will get to know. Also make sure that you are writing this somewhere, because this is very important, and only this much you can just see and look for yourself. Then we will solve numericals and you will understand all the theory part in a much better manner. But today let's just get here an expenditure method. Add final expenditures that each firm makers are getting, like each firm makers are incurring. So what is happening here is, forget this term, we just quickly get to one firm, that is, see, NCERT has a very favorite term I, so we always talk about ith firm. So we are talking about one firm, that is firm I, and firm I के क्या expenditure हो रहे हैं? Consumption expenditure on goods and services produced by firm. See what happens is, ये firm I आप हैं और आप टी शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो गुड है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है टी शर्ट्स. ओके, तो अब आपने जो टी शर्ट्स प्रोड्यूस की, इन पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ, यानी इनमें से टी शर्ट्स कंज्यूम कितनी हुई. ओके, कंज्यूमर्स ने कितनी टी शर्ट्स खरीदी, उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर टी शर्ट्स पे किया, आपकी बनाई हुई, आपकी फर्म की बनाई हुई टी शर्ट्स पे कितना स्पेंडिंग कंज्यूमर्स ने किया, वो होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, दैट इज यू. ओके, इसको हम CI डिनोट करेंगे. नाउ फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I, capital I, that incurred by other firms on capital goods produced by firm I. Looks very complicated, right? It's very simple. T-shirts पे आ जाते हैं वापस. तो T-shirts जो आपने बनाई, कुछ तो कंज्यूमर्स ने खरीदी, बट कुछ क्या हुआ, बाकी फर्म्स ने या बाकी किसी और फर्म ने खरीद ली. आप कह लीजिए, चलिए आपकी T-shirts आपने तो बल्क में बना दी, उसके बाद आपसे किसी और फर्म ने खरीद कर उसमें में भी बटन्स चेंज किए, कलर चेंज किया, कुछ भी चेंज नहीं किया और उसमें बस आगे वैल्यू ऐड करके उसको बेच दिया. तो कुछ और फर्म भी आपसे खरीद सकते हैं, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस में, या किसी और फर्म ने किसी और तरीके से इन्वेस्ट किया, तो वो जाता है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अदर फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्म आई. दैट इज, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने टी शर्ट्स प्रोड्यूस की, आपकी टी शर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए आपकी फैक्ट्री में कैपिटल गुड चाहिए, मशीन चाहिए, और वो मशीन की कॉस्ट इनकर करने के लिए आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो किसी और फर्म ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया,
वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आपका पार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म आई, दैट इज हम उसको जी से डोनेट करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो वापस से टी शर्ट्स पे आते हैं। अब कुछ टी शर्ट्स गवर्नमेंट ने भी खरीद ली, गवर्नमेंट को अपने कुछ एनजीओज में जाना है या गवर्नमेंट को कहीं देना है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप अच्छी बना रहे हैं और आपसे आके उन्होंने खरीद ली। तो आपकी बनाई हुई टी शर्ट्स पे गवर्नमेंट ने भी एक्सपेंडिचर किया, तो वो आ जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। देन एक्सपोर्ट रेवेन्यूज अर्न्ड बाय फर्म आई बाय सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड। व्हाट इज हैपनिंग कि अब आपने टी शर्ट्स बनाई, आपने कहा मैं सिर्फ हमारी ही कंट्री में क्यों बेचूं, मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊंगी या जाऊंगा, जो भी आप हैं, एंड यू जस्ट थॉट कि इसको तो चलो एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर की कंट्रीज में बेचते हैं, कहीं और भी बेचते हैं, एंड इफ नथिंग एल्स चलो पास से शुरू करते हैं, श्रीलंका में सेल करते हैं, अपने आसपास से देखते हैं। तो आपने एक्सपोर्ट किया, उससे भी आपने कुछ पैसे अर्न किए, तो वो हो गया आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू विच इज एक्सआई। सो आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए। तो अगर हम सिर्फ आपकी फर्म की बात कर रहे हैं जो कि है रेवेन्यू ऑफ फर्म आई, आप फर्म आई हैं, तो आपके रेवेन्यूज क्या हो गए, आपको मिला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपको मिला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट से भी मिला आपको, और एक्सपोर्ट करके भी मिला। ये सारे एक्सपेंडिचर अलग अलग सेक्टर्स ने आप पर किए, ये सिर्फ आपके हैं। लेकिन एनसीईआरटी क्योंकि सिर्फ आई पे नहीं रुकता, एनसीईआरटी की हमेशा टोटल फॉर्म्स होती हैं 1, 2, 3 टू एन फॉर्म्स है हमारी टोटल इकोनॉमी में, जो कि हमने प्रोडक्ट मेथड में भी देखा था कि टोटल फॉर्म्स हो गई एन। तो सिर्फ एक फॉर्म यानी सिर्फ आपकी फॉर्म का एक्सपेंडिचर नोट करके हम अगर बताएं तो क्या हम इकोनॉमी का एक्सपेंडिचर बता सकते हैं? वेल, आप भी अग्री करेंगे दैट द आंसर इज नो। सो वी नीड sum total of all the firms that exist in the economy to get to the total expenditure, right? I hope you're with me till now. तो for n firms हम जो sum कर रहे हैं, RV is revenue, okay? RV is revenue. तो जब हम 1 से लेके n firms का sum कर रहे हैं, एक फॉर्म या आपकी फॉर्म के एक्सपेंडिचर हमने देखे, अब हम सारी फॉर्म्स के एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सारी फॉर्म्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बहुत सारी फॉर्म्स को आ रहा होगा। जैसे आप एक टी शर्ट फॉर्म है, दूसरी मे बी बॉटम वेयर जीन्स बना रहे हैं, वो वाली फॉर्म है, या कोई तीसरी फॉर्म है जो जैकेट्स बना रहे हैं, सबका एक्सपेंडिचर आ रहा होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हम सम टोटल कर देते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n, दैट इज फॉर्म्स जो हमारी है 1 से लेके n तक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने बोला डोमेस्टिक फॉर्म्स, राइट? हम सम टोटल कर रहे हैं डोमेस्टिकली, यानी हमारी कंट्री में जितनी भी फॉर्म्स हैं उनका एक्सपेंडिचर। हमने अभी बाहर की कंट्रीज का नहीं लिया फॉर्म का, हमने सिर्फ अपनी फॉर्म्स का लिया है कि अपनी फॉर्म्स पे हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, राइट? तो ये समेशन जो है ये टोटल है 1 to n फॉर्म्स का। ये 1 to n हमारी फॉर्म्स हैं जो डोमेस्टिक फॉर्म्स हैं। डोमेस्टिक मतलब हमारी टेरिटरी में हमारी जो टोटल फर्म्स हैं उनका एक्सपेंडिचर ऐड करके ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया टोटल, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया और ये एक्सपोर्ट आ गया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हमारी टेरिटरी का है। अब अगर आप यहाँ देखें, एक एरो लगा के मैंने लिखा है C माइनस CM। CM क्या है? जो हम इम्पोर्टेड फर्म की कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इम्पोर्टेड है हमारा, या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो इंपोर्ट कोई बाहर की फॉर्म पे अगर हम कर रहे हैं वो IM हो गया। GM क्या हो गया? गवर्नमेंट अगर बाहर की फॉर्म पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। तो जब हम ये जो हमारा C है ये बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसमें से अगर हमने जो बाहर की फॉर्म पे किया है वो माइनस कर देंगे तो जो डोमेस्टिक हमारे घर की फॉर्म पे कितना है, क्योंकि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है हमारा ये हो गया। इसमें क्या हो रहा है? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम लोग अपनी टोटल फॉर्म्स पे भी कर रहे हैं जो डोमेस्टिक फॉर्म है, और हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना, सी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर हम एक्सपोर्ट इंक्लूड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग का ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर ओपन इकोनॉमी है, अगर हम अपना शर्ट बाहर बेच सकते हैं तो बाहर की फॉर्म, बाहर की शर्ट कंपनी भी हमारी कंट्री में बेचेगी, तो वो वाला हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हमारा सी जो हो गया
ये कंजम्पशन हो गई हमारी टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये जो हो गया ये टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ एन फर्म्स विच एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। बाहर की कंट्री की बात नहीं हो रही। आपको लगेगा ये समेशन है तो ये टोटल कंजम्पशन होना चाहिए, ये क्यों बोल रही है, सी क्यों बोल रही है, ये होना चाहिए टोटल, बट ये टोटल है हमारी एन फर्म्स का। हमारी कंट्री में, हमारा इंडिया में जो टोटल फर्म्स हैं, यहाँ पे इतनी फर्म्स हैं, एन फर्म्स हैं, ये उन एन फर्म्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। लेकिन हमारी कंट्री के बाहर से भी हम लोग गुड मंगा रहे हैं, वो उन पे जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो सीएम है। ओके, तो जब हम टोटल में से इंपोर्टेड माइनस कर देंगे तो जितना हमारी फर्म पे हो रहा है वो बचेगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ, बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये डोमेस्टिक फर्म्स का है, ठीक है। इसे या तो ऐसे लिख सकते हैं या हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है माइनस इंपोर्टेड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। अगर हम ये कर देंगे, इंपोर्ट्स वाला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हटा देंगे तो जितना हमने डोमेस्टिक फर्म्स पे किया बस उतना बचेगा, जो कि ये है। वेरी सिंपल। सिमिलरली गवर्नमेंट का है, यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है डोमेस्टिक फर्म्स पे, एन फर्म्स पे, हमारी कंट्री की फर्म्स पे। लेकिन बाहर की अगर किसी फर्म पे एक्सपेंडिचर हुआ है वो जीएम हो गया, अगर हम वो इस जी से हटा देंगे तो हमारे पास अपनी कंट्री का आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो एक्सपोर्ट है ये एग्रीगेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इकोनॉमी, ये है टोटल एक्सपोर्ट पे। जो हम लोग, आपने टी शर्ट बेची तो जो टोटल फॉरेनर्स ने, जो एग्रीगेट मतलब टोटल हर फर्म का, सिर्फ आपकी फर्म का नहीं, आपके जैसी जो एन फर्म्स है हमारी कंट्री में, उस पे मिला के कितना आया है बाहर से, जो हमने एक्सपोर्ट किया, सारी एन फर्म्स ने मिलके जो बाहर एक्सपोर्ट किया उन पे कितना एक्सपेंडिचर बाहर से आया या कितना एक्सपोर्ट रेवेन्यू आया, वो एग्रीगेट है ये। ओके, अब हमने कुछ नहीं किया, एक्चुअली ये हमने नहीं किया। मैं अगर पर्सनली चाहूँ तो मैं आपको इतना कॉम्प्लिकेट करके दिखाऊँ ही नहीं और मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको फाइनल इक्वेशन समझा दूँ, बट हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से आजकल बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th। तो जब हमने सेम इक्वेशन जो है रेवेन्यू की, हमने उसको एक अलग तरीके से लिखी। हमने जो टोटल सी लिखा था डोमेस्टिक फर्म्स का, इसी को हम क्योंकि सी माइनस सी एम भी लिख सकते हैं, जो हमने अभी समझा पहले। आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज थोड़ा रिवाइंड करिए और दोबारा से जाइए, मैंने क्या समझाया था कि समेशन सी आई, जैसे हमारी टोटल डोमेस्टिक फर्म पे एक्सपेंडिचर है, उसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि डोमेस्टिक, या तो टोटल डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर लिख दो, या लिख दो कि जो फाइनल पूरा हुआ है उसमें से अगर हम इंपोर्ट वाला हटा दें तो भी वही बचेगा जो हमारी कंट्री पे हुआ है। दो तरीके हो सकते हैं लिखने के, तो ये एक तरीका है। अब हमने कुछ नहीं किया, इसकी जगह ये लिख दिया, सी की जगह सी माइनस सी एम लिख दिया, समेशन आई की जगह आई माइनस आई एम लिख दिया, समेशन जी की जगह जी माइनस जी एम लिख दिया, और इसको हमने एज इट इज रहने दिया, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत सिंपल है, कुछ अभी तक नया नहीं हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला सी, एक्चुअली मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ी कम हो। ये हो गया सी, ये आई, ये जी, हमने इनको एक साथ ले लिया। ये टोटल है ना, इसमें इंपोर्ट वाला भी इंक्लूडेड है, एक्सपोर्ट वाला भी इंक्लूडेड है, सब है। तो हमने इसको अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, और फिर इसको ले लिया, ठीक है। और जो इंपोर्ट वाले एक्सपेंडिचर है, जो एम है वो इंपोर्ट है, तो जो इंपोर्ट वाले एक्सपेंडिचर हैं इनको हमने अलग लेके यहाँ लग दिया। कुछ नहीं, माइनस वाले टर्म्स यहाँ आ गए, प्लस वाले टर्म्स यहाँ आ गए, बस इक्वेशन में थोड़ी हेरफेर की है, कुछ भी नया नहीं किया है। अब हमने क्या किया, ये जो इंपोर्ट पे एक्सपेंडिचर है, इंपोर्ट पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इंपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट है, या इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने कितना किया है, हमें नहीं मतलब कौन से सेक्टर ने कितना किया है, कंज्यूमर्स ने कितना कंज्यूम करके किया है, या इन्वेस्टमेंट कितनी की है, या गवर्नमेंट ने कितना किया है, वी आर नॉट कंसर्न। हमें मतलब है टोटल कितना किया है इंपोर्ट पे। तो हम इसको मिला के इस पूरी इक्वेशन को m लिख देंगे, ठीक है। यहां से आ गया m मतलब टोटल, हर सेक्टर ने मिला के कितना स्पेंड किया है इंपोर्ट पे, कितनी इन्वेस्टमेंट की है इंपोर्ट पे, कितना कंजम्पशन किया है इंपोर्ट का, कितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, सब जब मिला देंगे उसको m लिख देंगे। m आ गया यहाँ पे, और ये हमारा एज इट इज आ गया C I G और X, क्योंकि
समेशन एक्स ऑलरेडी वो था जो फॉरेनर्स ने किया है हमारे कंट्री के गुड्स पे, तो वो एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर ये आपकी एक सिंपल इक्वेशन आपके आगे आई, और आप एम देख रहे हैं, आइडेंटिटी है, ये मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया कि एम क्या है, कंजम्पशन पे जो बाहर एक्सपेंडिचर हुआ है, बेसिकली ये इम्पोर्टेड एक्सपेंडिचर है, इम्पोर्ट्स पे टोटल हर सेक्टर का मिला के कितना एक्सपेंडिचर किया है, एम वो है। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपके पास एक इक्वेशन आ गई फाइनल, ये हुई आपकी ith की। अब यहाँ पे जीडीपी जो आपका हो गया वो यही हो गया जो टोटल सम है फॉर्म्स का, एक्सपेंडिचर बेसिकली टोटल। ओके, टोटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था, हमने सिर्फ एक्सपोर्ट्स इंक्लूड किए थे, फिर हमने इंपोर्ट पूरा माइनस किया, इतना कॉम्प्लिकेट किया, जबकि बहुत सिंपल इक्वेशन बस इतनी थी कि एक्सपेंडिचर जो टोटल जीडीपी होता है वो ये होता है कि कंजम्पशन, कंज्यूमर्स ने कितना स्पेंड किया, प्राइवेट सेक्टर ने कितना इन्वेस्ट करके स्पेंड किया, गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बाहर के सेक्टर्स ने। सो अगर इसे और सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाना चाहूँ तो दिस इज नथिंग एल्स बट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन एक्सपेंडिचर, विच इज कंजम्पशन, यानी हाउस होल्ड सेक्टर ने कितना किया है, हाउस होल्ड सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, सी कर रहा है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कितना कर रहा है, आई कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स या फर्म्स या बिजनेसेस। गवर्नमेंट कितना कर रही है, जी कर रही है। और एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब ओपन इकोनॉमी, तो हम लोग का बाहर का सेक्टर कितना कर रहा है, ओपन इकोनॉमी कितना हो रहा है, एक्स माइनस एम। तो हर सेक्टर मिला के कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, क्योंकि यही कुछ सेक्टर्स हैं, जब हम इनका टोटल कर देते हैं तो हमें पता चलता है हर सेक्टर कितना स्पेंड कर रहा है, यानी अगर इतना स्पेंड कर रहे हैं, इतना इनके पास पैसा है, तो हमारी जीडीपी उतनी है। सिंपल, क्योंकि जो स्पेंड कर रहा है यानी आपके पास पैसा है उतना स्पेंड करने के लिए, तो जब हम हर सेक्टर का मिला के टोटल कर देते हैं तो हमारा आ जाता है जीडीपी। इतना था एनसीईआरटी तक, लेकिन क्योंकि आप में से कई लोगों को थोड़े इश्यूज हैं कि एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं है, तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज और है जो मैंने दूसरी बुक्स रेफर करके समझी है, जो आपको पता होनी चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, वो ये है कि एक्सपेंडिचर मेथड जो आपका है ना, वो आपको जीडीपी एमपी देता है। क्योंकि अब आप एग्रीगेट्स वाला वीडियो देख चुके होंगे, आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा है तो आप प्लीज वो देख कर आइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एज आई एम सेइंग रिपीटेडली। तो एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एमपी देता है आपको, और जीडीपी एमपी अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो दूसरी बुक्स में बस इतना है कि जीडीपी एमपी कैसे ब्रेक डाउन होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि नथिंग एल्स बट सी है। की थी ना हमने ऊपर बात, मैंने यही समझाया था, कुछ नहीं होता। दूसरी बुक्स को जो रेफर करने का आपको बोला जाता है, या आप जो सोचते हैं एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, एज आई सेड एनसीईआरटी भी आपको सब कुछ समझा रही है। एनसीईआरटी ने बस आपको, हम इसे कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं, बट हम इसे समझने की कोशिश करें तो एनसीईआरटी ने आपको डिटेल में इकोनॉमी वाइज सब समझा दिया, इंपोर्ट लेके एक्सपोर्ट लेके। आपको ये नहीं बोला कि चलो फाइनली आप यहीं आ जाओ कि ये देख लो, ये भी बोल सकते थे, बट एनसीईआरटी प्रेफर्ड कि आपको ये समझ आए कि इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर क्या है, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर क्या है, फिर आप उसको सेग्रीगेशन समझें, बिकॉज मतलब दे नो दैट इवन यू पीपल आर इन क्लास 12 देन यू विल अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। These are just थोड़े थोड़े minute concepts and you should know it. So दूसरी बुक्स में कुछ नहीं है, आपको ये बोला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज नथिंग एल्स, बस जी आपका, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट्स नथिंग बट आपका आई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, उसमें से भी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे क्या इन्वेस्टमेंट है, जो फिक्स्ड बन रहा है आपका बनना ही है, और चेंज इन स्टॉक जो हमने इन्वेंट्री पढ़ा था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका ईयर के स्टार्ट में ओपनिंग स्टॉक था, उसमें से ईयर के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा जब आपने वो माइनस किया, यानी उतना चेंज आपके उस पूरे ईयर में आया है स्टॉक में, नथिंग एल्स बट चेंज इन स्टॉक, ओके। एंड जब आप वो ऐड कर देते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जो डिसाइडेड है, तो ये हो जाता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच इज टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई एक तरीके की। जब हम इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारी फर्स्ट वीडियो में समझ रहे थे, व्हाट एंड व्हाई ऑफ नेशनल इनकम, उसमें हमने यही समझा था कि जब हम कैपिटल गुड्स की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसके बाद फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेंट्री क्या होती है,
चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है. सो वी हैव स्टडीड एवरीथिंग. दीज आर जस्ट डिफरेंट टर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली. जैसे आपने ऊपर आई देखा, ये आई का एक टर्म है. सिमिलरली एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो आपका ये रहा. तो दूसरी बुक में बस ये है. और अगर आपको ये बेसिकली आपको हेल्प करता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए. जब आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए. आपको ये नहीं देंगे, आपको बोलेंगे बहुत सारे टर्म्स दे देंगे, कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से आप जीडीपी निकाल दिया. या वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके आप एनएनपी एफसी निकालो. लेकिन आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड आपको जीडीपी एमपी देता है. ओके तो आपको ये दिया हुआ है कोई वैल्यू, ये दी है, आपको इनको प्लस करना है, आपके पास जीडीपी एमपी आएगा. पर आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको जीडीपी एमपी पूछा है या एनएनपी एफसी पूछा है. वो कॉन्सेप्ट्स में ऐसे हिलाते हैं कि उनको पता होगा, उनको ये चेक करना है कि आपको पता है या नहीं पता कि एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एमपी देता है और क्वेश्चन में एनएनपी एफसी पूछा. It is possible and it happens with a lot of students when they say economics is tough. Economics is not tough. It's just that you have to understand some things and not everything can be served on a platter. So they just check कि आप एक्सपेंडिचर मेथड ये टोटल करके, इसको ये तो नहीं लिख रहे कि एनएनपी एफसी है. नो, आपको ये जीडीपी एमपी देगा. उसके बाद आपको जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पर आना है. और ये कैसे आता है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है. सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड. सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड and I hope you understand. Next time we'll see you with income method. Till then, thank you very much and be safe.